تو ہم غیب کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم نے 5 چیزوں کو جو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے، تو غنیمت اس انداز میں نہیں جس انداز میں غیر مسلم. ہمارا غنیمت سمجھنے کا انداز کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو آخرت میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے اس کو ہم نے سائڈ پہ لگانا ہے، اور ہر وہ کام جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے اس کام کو ہم نے فوکس کرنا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم ٹائم بچانے والے کہلائیں گے اللہ کی نظر میں. اب ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، رات کو 2 ڈھائی بجے، جیسے کاروباری لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈھائی بجے گھر آ رہے ہیں، 12 بجے تک سو رہے ہیں، پھر 12 بجے اٹھ کے چائے پی اور نکل گئے، پھر بزنس کیا، بزنس اور کروڑ ارب پتی بن گیا. ہو سکتا ہے اس کو ورک شاپس میں بلائے، اس کو موٹیویشن اسپیکر اپنے پروگرام میں بلائیں کہ ماشاءاللہ اسٹرگل کے نتیجے میں آج یہ یہاں تک پہنچا ہے. یہ ٹائم، جناب آپ کی کامیابی کا راز کیا؟ اوکے جی، میری کامیابی کا راز یہ کہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، میں اٹھتا ہوں اور اٹھتے ہی چلا جاتا ہوں آفس، اور موبائل بند رکھتا ہوں 24 گھنٹے، اور اپنے کام کو فوکس، موبائل استعمال بھی اتنا ہی کرتا ہوں جتنا کاروبار میں مجھے استعمال کرنا پڑے. اور جناب ایسے میری زندگی، اور آج میں کروڑ روپے کا مالک ہوں. لیکن جب کسی مفتی سے پوچھو گے، عالم سے پوچھو گے، وہ کہے گا یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. کیوں؟ آخرت میں برباد. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی لائف سنت کے مطابق نہیں. ہمارے نبی سے زیادہ ویژن کس کا بڑا ہوگا بھائی؟ ہمارے نبی اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے. ان لنفسک علیک حقا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، اپنی صحت کو بھی ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے کماؤ پوت میں نے دیکھے ہیں، کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں. وہ گھی کا ڈبہ دیکھا ہے آپ نے؟ گھی کا ڈبہ نظر آئے گا، دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے کما لیے، نہ صحت کی طرف توجہ، نہ ورزش، نہ ایکسرسائز، نہ کھانے پینے پہ کنٹرول، نہ بیوی بچوں کی توجہ. بچے باغی ہو گئے، کمانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں، بچے باغی ہو گئے باپ کے، کیونکہ بچپن میں باپ نے ان کو محبت ہی نہیں دی، ٹائم ہی نہیں دیا. بچہ دیکھو، جو بچے کو ٹائم دیتا ہے نا، بچہ اسی کو مانتا ہے. بچہ یہ ڈاکومنٹیشن کو نہیں مانتا. ابے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے یہ اما ہے، لیکن پال پڑوسن رہی ہے اس کو، تو بچہ کس کی گود میں جائے گا؟ پڑوسن کی گود میں جائے گا. آپ اس کو بتائیں، یا بچے کو محبت دے رہا ہے ماموں، فرض کر لو، ہر وقت اس کو گود میں اٹھاتے ہیں ماموں بچے کے، اور اس کو شاپنگ کرانے لے جاتے ہیں، پارک میں لے کے جاتے ہیں. ابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا. اب جب ایک دن ماموں نے گود میں لیا اور ابا نے بھی پکارا، تو بچہ گیا کس کی طرف؟ جائے گا کہاں؟ ماموں. اب آپ اس کو نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں بچے کو، دیکھو ڈاکومنٹیشن میں بیٹا فادر میں لکھا ہوا ہوں، وسیم بن، میں وسیم، میں ستار. دیکھو بیٹا مانے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ تھوڑی. یہ آج لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے باغی ہو گئے، ہم سے بات ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہے، ساری توجہ ماں کی طرف ہے، ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو بھائی جب ان کو لفٹ آپ نے کرانی تھی تو آپ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. باپ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں پیسہ تو میں خرچ کر رہا ہوں، یقیناً بہت زبردست کوئی عقل مند بچہ ہوگا تو اس بات کو مانے گا، لیکن بچہ تو بچہ ہے نا. وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے، پیسہ کون دے رہا ہے، میری اماں جو مجھے عزت کے ساتھ پال رہی ہے، تو ابا نے اماں کو پالا ہوا ہے تو اس وجہ سے اماں مجھے پال رہی ہے. یہ چیزیں تو بچے کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون قریب ہے میرے. تو آپ بچوں کو ٹائم اگر نہیں دیتے، گھر میں ان کو پیار نہیں کرتے، آپ پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ اللہ کی نظر میں بھی ناکام ہو میرے بھائی. اور یہ بڑھاپے میں یہ چیزیں پھر آپ کو ستائیں گی، تنگ کریں گی آپ کو. اگر آپ کی جاب اس ٹائپ کی ہے نا کہ آپ کو پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو ہفتے میں اس کی پھر تلافی کیا کرو. پورا ہفتہ ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دن زیادہ ٹائم دے دو ان کو. پھر آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، نماز آپ ضائع کر رہے ہو تجارت میں، تو دنیا تو آپ کو کہے گی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے کامیاب آدمی، آپ نے اتنا اچھا بزنس کیا. اللہ کیا کہے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. نماز قضا کر کے میرے بھائی اگر کروڑوں اربوں روپے بھی آ جائیں تو سمجھ لو کہ آپ قارون سے آپ کی مناسبت اور زیادہ پکی ہو گئی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ جو نماز چھوڑتے ہیں نا ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اس کی لاجک بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قارون بھی پیسہ کمانے میں مست تھا اور آپ بھی پیسہ کمانے میں مست ہو، نماز روزے کی پرواہ نہیں ہے آپ کو. تو ایک ہی جیسے ہو گئے نا دونوں. اس نے زیادہ کما لیا، آپ کے پاس اتنے وسائل ہے نہیں، ورنہ آپ بھی وہاں تک پہنچ جاتے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، تو غنیمت ہم نے اس انداز میں سمجھنا ہے جس انداز میں قرآن نے ہمیں غنیمت سمجھنے کا حکم دیا ہے. اس کو فوکس کریں گے، تھوڑی محنت میں زیادہ مل جائے گا. اس کو ہٹا کے اگر زیادہ محنت کر لی تو زیادہ میں بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کو. سمجھتے؟ تو اس لیے بیلنس لائف، اعتدال والی لائف. سب سے پہلے تو اپنی زندگی سے ان تمام کاموں کو نکال دیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. ان کو تو بالکل ہمیشہ کے لیے نکال دیں.
कुछ काम ऐसे होते हैं आखिरत में फायदा नहीं होता, दुनिया में तो होता है, तो चलो कर लो, ये भी तो एक जिंदगी है ना। बल्कि 4 किस्म के काम हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनका दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी नुकसान, उनको तो करीब, वो तो टाइम वेस्टिंग ही है, वक्त जाया करना ही है। वो कौन से काम है? शराब पीना, नशा करना, गुटखे खाना, इनमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? ना इसका दुनिया में ये फायदा नहीं, नुकसान है उल्टा, और आखिरत में भी क्या है? वो तो है ही नुकसान। अल्लाह पूछेगा तू जो मुंह के कैंसर से मरा है, तो ये क्या हुआ था जो तुझे मुंह का कैंसर हुआ? आप ये कहोगे अल्लाह मैं चूंकि गुटखा खाता था मजबूर था मैं, ये दलील चलेगी क़यामत में? और जितनी नशे की चीजें आइस ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये डिप्रेशन बढ़ाती हैं, ये डिप्रेशन खत्म नहीं करती हैं। हत्ता कि चाय भी डिप्रेशन बढ़ाती है, कॉफी भी डिप्रेशन बढ़ाती है। मैं भी चाय पीता हूं, लेकिन मैं फजाइल का कायल नहीं हूं। जितना है उतना ही रहने दो, बट सुट्टा लगा लिया, बस इतना ही। आजकल बाज़ हज़रात फजाइल पर पेश कर रहे हैं बाकायदा, तो फजाइल नहीं होते। हर वो चीज जो जिसमें नशा है ना, अब बाज़ लोग कहते हैं चाय में नशा थोड़ी है। भाई नशा वो वाला नहीं है जो पी शराब वाला होता है। नशे का मतलब ये है कि आपको जब थकावट महसूस होती है, आप चाय पीते हैं, कैफीन आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ये कोई नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ता, समझ रहे हैं ना? एक्सरसाइज करने से एक बढ़ता है, एक नींद से आपको सुकून मिलता है, ये वो नहीं है, ये वक्ती है। तभी इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जो पीते हैं उनको पीने की आदत हो जाती है। ये इसके गलत होने की सबसे बड़ी दलील। जो नहीं पीते वो वैसे ही फिट फाट रहते हैं। फिर सवाल पीते क्यों हैं? तो हम चाय ना पिए तो क्या पिए? मतलब मेरा ये है कि नुकसान है, ज्यादा नहीं है। डॉक्टर लोग कहते हैं ज्यादा नहीं है, तो ठीक है यार, शराब से बचे हुए हैं, चरस से बचे हुए हैं, हेरोइन से बचे हुए हैं, तो 2-3 छुट्टे लगा लिए। फिर भी कोई ये भी ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है। और हमने तो कई बार छोड़ी है, फिर वो शुरू क्यों करती है वो मैं बता चुका हूं कई दफा। क्योंकि चाय ना पिए तो फिर लोग कुछ और पिलाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लस्सी लाके, इतना बड़ा लस्सी का गिलास लाके पिलाएंगे, वो कौन हजम करेगा भाई? तो ये जितनी चीजें हैं, फजाइल होंगे, थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं। तो खैर मैं बस 2 मिनट समेटता हूँ। बात क्या कर रहा था मैं, कहां से कहां निकल जाता हूँ यार। ये चाय कहां से, ये भी डॉक्टरों की फील्ड है भाई। मेरी चाय और कॉफी पे जो रिपोर्ट है वो हतमी नहीं है। आपको डॉक्टर दिन में 20 कप चाय के पिलाए, मशवरा दे 20 कप कॉफी के, आप डॉक्टर की राय पर अमल करें, इसमें हमारी राय पर आप अमल ना करें। हम तो जो समझ में आया तो पेश कर दिया आपके सामने कि वो ये चीजों में रखा वक्खा कुछ नहीं है, ठीक है ना? वक्ती फायदे होते हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं होता इससे। देखो पैगंबरों की जिंदगी नेचर के मुताबिक होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, थके खाना खा के आराम किया। ये है स्ट्रेस और थकावट खत्म करने का नेचुरल तरीका। और एक तरीका ये है कि थकावट दबा के हो रही है, सोता नहीं है, कॉफी पी के अपनी खोपड़ी को जगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? तो ये मुझे नहीं समझ में आता, बाकी डॉक्टर जाने, आप जाने। अगर डॉक्टर कहते नहीं आप पिए तो आप पी ले भाई, ये मेरी फील्ड नहीं है, तो इसमें ज्यादा इन चीजों में बात करता नहीं आजकल। तो बस वो बता दें आखिरी सिरा कहां था। अबे वो बिल्कुल एंड में, अभी तो खत्म कर रहा हूं ना बयान, बिल्कुल एंड में जहां था मैं है। हाँ, ये भाई ने बात की। 4 किस्म के काम होते हैं। कुछ काम है दुनिया में भी नुकसान हो रहा है, आखिरत में भी। नशा है और बहुत सारे और ऐसे काम हैं। जिना है, दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत में भी। दुनिया का नुकसान क्या? आपकी जो शादी के बाद की जिंदगी है वो बुरी तरह मुतासिर होती है जानी की। वो बीवी को मोहब्बत नहीं दे पाता जो जिना से बचने वाला देता है, फिर मोहब्बत में कमी होती है। उसके अलावा भी बड़े नुकसान आते हैं, आखिरत में तो है ही है। और कुछ काम ऐसे मेरे भाई जिसका दुनिया आखिरत में तो नुकसान नहीं है, सॉरी दुनिया में तो नुकसान नहीं है लेकिन आखिरत में उसका नुकसान है। अभी वक्त खत्म हो गया, फिर तफसील से बताऊंगा। कुछ काम ऐसे हैं न दुनिया में कोई फायदा न आखिरत में कोई फायदा। ये तीनों किस्म के काम अपनी जिंदगी से निकाल। अब जो पबजी खेल रहे हो, ठीक है, दुनिया में कोई बज़ाहिर कोई ऐसा नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन ये टाइम वेस्टिंग है। इसका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में कोई फायदा है। नुकसान का खतरा बहरहाल है, कमर के मसाइल खड़े हो जाएंगे, बैक पेन शुरू हो जाएगा जब यूं घंटे से लगा हुआ यूं बटन दबा रहा है, तो ये क्या होगा है भाई? और अगर नहीं होता तो टाइम तो जाया तो हो रहा है ना। जो तो हदीस में जो कहा ना कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो, असल में इन चीजों के बारे में कहा है। वो तमाम काम जिसका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में कोई फायदा है, उन तमाम कामों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। कुछ काम ऐसे हैं दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा। अच्छा, कुछ ऐसे लज्जत वाले काम होते हैं कि वो दुनिया में भी उसमें मजा आता है और आखिरत में भी सवाब। मिसाल के तौर पर आप जो खेल खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हो, इसके बजाय आप ऐसा खेल खेल लो ना, फुटबॉल खेल लो जाके, क्या ख्याल है? तो मजा भी आएगा और सेहत भी क्या होगी? अच्छी होगी ना। तो सेहत अच्छे होने से आखिरत का फायदा है या नहीं है? फराइज वाजिबात तो बाहर सूरत में पूरा करने हैं, रमजान के रोजे, ज़कात, फर्ज, ये तो है ही है। ये तो इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये तो सबसे पहले है। ये तो मैं इसलिए इसमें बात नहीं कर रहा कि ये चीज तो इस्लाम में सबसे पहले है। नमाज के लिए टाइम निकालना है, रोजे के लिए टाइम निकालना है, ज़कात के लिए, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। इससे हटके आम नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूं मैं।
तो उसमें वो तमाम काम जिसका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में, उन तमाम कामों को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दो। मुकम्मल नहीं निकाल सकते, कम कर लो। देखो जो काम एकदम से नहीं हो सकता ना, तो मायूस ना हो, आधा कर लो यार उसको। हमारे एक दोस्त कहते हैं मैं रोजाना मैंने मामूल बनाया आधा घंटा तिलावत करूंगा, होती नहीं है मुझसे। तो मैंने कहा 15 मिनट कर लो। कह रहे यार 15 मिनट में क्या यार, मैं हाफिज कुरान हूं, सिर्फ 15 मिनट। तो मैंने कहा जब आधा घंटा नहीं हो रही तो 15 मिनट कर लो ना। ये सोचते रहोगे कि नहीं जी 15 मिनट से क्या होता है, तो फिर आना आधा घंटा होगी ना, 15 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए कुरान लेके बैठ जाया करो रोजाना। तो इंसान की तबीयत में अल्लाह ने लचक रखी है, एकदम से नहीं वलीउल्लाह बन जाता वो, एकदम से पूरा यूटर्न की तरह चेंज नहीं हो जाता। यूटर्न में भी थोड़ा सा घुमा के आना पड़ता है। ऐसा कभी गाड़ी देखिए आपने, यूं गई और यूं करके उल्टा करके आपने यूं करके वापस ले आए। तो जो काम नहीं हो रहा मेरे भाई, जितना हो रहा है उतना कर लो। और सबसे बड़ा अजाब इस जमाने का टाइम जाया करने का ये मोबाइल है। लगे रहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टक टक टक। फेसबुक तो ऐसा टाइम जाया करता है, एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो फिर तीसरी वीडियो फिर चौथी वीडियो फिर पांचवी वीडियो फिर छठी वीडियो, 3-3 4-4 घंटे लोगों के बर्बाद हो रहे हैं इस पे। उसका आउटपुट जीरो है, बल्कि नुकसान दे रहा है वो। तो मोबाइल पे कंट्रोल करो, कंट्रोल। कितना टाइम इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है और किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं जी हम कुछ थोड़ी देर तफरीह के लिए भी इस्तेमाल हो, तो उसका भी एक टाइम रख लो। यार आधा घंटा मैं वहीं देखूंगा यूट्यूब और फेसबुक पे क्या आ रहा है, आप बदनज़री ना करो उस पर, वो तो हराम है ना। तो उसको भी तो महदूद तो करो ना। आप कहते हो यार मैं इतना नेक नहीं बन सकता कि मैं जब भी यूट्यूब फेसबुक देखूं तो कोई काम की चीज ही देखूं, ये तो बहुत ही नेक बन जाऊंगा ना मैं। तो भाई इतना कर लो कि अभी तुम 2 घंटे मोबाइल पे जाया करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस जाया करने के टाइम को कम करके कितना ले आओ, 1 घंटा टाइम जाया करूंगा मैं। 2 घंटे से किस पे आ जाओ। फिर थोड़े दिनों में जब काम का बंदे बनोगे ना इंशाल्लाह, तो वो 1 घंटे से खुद ब खुद दिल चाहेगा किस पे आ जाओ, आधा। क्योंकि उधर काम बढ़ रहे हैं ना आपके अहम काम। उन अहम कामों के बढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको अपनी जिंदगी की कदर हासिल होगी। तो आप खुद आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को कम करके 0 पे ले आओगे। आप बोलोगे बिला वजह मोबाइल देखना ही नहीं है मैंने, कोई काम की बात है। हम तो फोन सुनना बंद कर दिया। मैं इतना फोन सुनता था, उसके बाद ऐसा बंद किया है फ्लाइट मोड। मैं तो भूल जाता हूं इसको फ्लाइट मोड पे खत्म कैसे करना है बाज़ दफा, यानी साइलेंट से खत्म कैसे करना है। क्यों टाइम वेस्ट हो रहा था। कभी फलां का फोन आ रहा है, और सुनाए हजरत खैरियत से, कैसी चल रही है आजकल, तबीयत ठीक है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कहाँ होते हैं हजरत आजकल आप। मैं तो कराची में होता हूँ। और आप कहाँ होते हैं। मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ या मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई 10 मिनट पी गया। आप बताएं जी क्या बात है। जी हजरत मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे, वो नमाज में ये हो जाए तो सद्दा साहब लाजिम है। हाँ जी लाजिम। दूसरा फोन, तीसरा फोन। हमने कहा बेटा हम दुनिया में किसी काम के भी थोड़े दिनों में नहीं रहेंगे, ऐसी की तैसी यार। ऐसा बंद किया है तो घर में जाओ तो सबसे पहले झाड़ पड़ती है, 1 घंटे से फोन कर रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहे। वो झाड़ आसान है, उसके साइड इफेक्ट कम है। आदमी थोड़ा बर्दाश्त पैदा होती है, सुन लेता है, थोड़ा अपना मर्दानगी का एहसास होता है। उसके बाद एहसास होता है कि घर में कोई भी मर्द नहीं होता, ठीक है ना। ये 2-3 एहसासात तजर्बात के बाद वो आसान है। फोन सुनना शुरू करते हैं तो सारा दिन सारा दिन सारा दिन। फिर लोग कहते हैं कोई अलग नंबर रखें, खास लोगों को दे दें। तो भाई वो खास भी माशाल्लाह पहले 2 थे, फिर 4 थे, फिर 8 थे, फिर 8000 हो गए, ठीक है ना। उसका हल यही है कि भाई ये हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, आपकी मर्जी से इस्तेमाल नहीं। अब मैं ये नहीं कि लोगों से राब्ता खत्म। अब मैं जब फारिग होता हूं, जैसे एयरपोर्ट पे बैठा हूं जहाज के इंतजार में, तो वो टाइम मेरे पास फारिग है। उसमें मैं देखता हूं यार तस्बीहात हैं तो वो अल्लाह का कभी तौफीक देते वो मुकम्मल कर लो, तिलावत है कभी वो कर लो, वो भी हो गया तो यार मोबाइल देखो अब बैठे। फिर हम देख रहे होते हैं व्हाट्सएप पे वो वसीम भाई का 6 महीने पहले मैसेज आया हुआ है, उसमें कह रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो बंदा हैरान हो रहा था यार मैंने 6 महीने पहले से तबीयत पूछी थी। तो ऐसे टाइम आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। तो ये नहीं कि राब्ता मुनक़ते कर दें, ना, इसका भी नुकसान है। ये चीजें भी जरूरी है जमाने में। तो फिर आपने अपना एक टाइम लगा के फिर आपने देखा यार ये मिस कॉल आई हुई है तो बड़ा जरूरी आदमी है, तो फिर आप मैं कॉल बैक भी कर लेता हूं उसको, भाई आपने फोन किया, खैरियत कैसे फोन किया। तो ये आपने अपने फायदे के लिए रखा है। कौम को भी फायदा पहुंचाएं, लेकिन ऐसा फायदा कौम को ना पहुंचाने की कोशिश करें कि आप फायदा पहुंचाने के काबिल ही न रहें। मैंने एक मौलाना साहब को देखा डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं वो मोबाइल की वजह से। वो मुफ्ती हैं, वो लोगों को मसाइल बताते हैं। उन्होंने कौम की खिदमत के लिए ना मोबाइल ओपन खोल दिया, फोन आ रहे हैं हजरत तबीयत ठीक, जी हाँ ठीक, ये मसला, ये तलाक हो गई है, ये विरासत है, ये फलाना मसला है, ये जो है क्या नाम है बीसीओ किस्म के, रोजा टूट गया नहीं टूटा। थोड़े दिनों में आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उनकी ऊपर की सेटिंग क्या हो गई, आउट। मैं मिला उनसे। अच्छा जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि यार इनकी तो सेटिंग आउट लग रही है। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरी ऊपर की सेटिंग आजकल आउट हुई है, मैं गोलियां खा रहा हूं। मैंने कहा क्यों कह रहे हैं, ये मोबाइल की वजह से। फिर मुझे कहने लगे खुदा का वास्ता इस पे कंट्रोल करना, वरना ये डिप्रेशन का मरीज बना देगा। हकीकत है ये। पहले डिप्रेशन के मरीज कम थे, खुश जिंदगी थी, रात को बिस्तर पे लेटते थे, सो जाते थे। अब यूट्यूब, फेसबुक, उधर सुहांजना के फजाइल हैं। हकीकत है सुहांजना खाने से ये होता है, आदमी डिप्रेशन में जाता है। मेरे पास सुहांजना ही नहीं है। लोग सुहांजना के चमचे खा खा के 100 साल जिएंगे और मैं तो कुछ भी नहीं।
फिर जनाब वो हकीम, उसका ये माजून, फिर वो डॉक्टर की ये रिसर्च, फिर वो साइंसदान के नासा में सैयारे छोड़ रहे हैं। उधर एक फेसबुक पे वीडियो आती है, नासा में जो है ना वो जो है ना रॉकेट जा रहा है एक और नासा का ना, और वो साइंसदान उनके चांद पे जा रहे हैं, कोई मरीख की बातें कर रहे हैं। फिर नीचे वीडियो आएगी कराची में गटर उबल रहे हैं ना। आदमी कहता है यार ये पता नहीं दुनिया में हो क्या रहा है, हम कहां जी रहे हैं यार। फिर एक स्कॉलर आएगा, वो कहेगा पाकिस्तान बैंक करप्ट होने की तरफ जा रहा है, दिवालिया हो रहा है, भागो। अब मालदार आदमी कहता है यार सुबह से पासपोर्ट बनाओ बेटा, निकलो। गरीब कहता है यार हम तो भाग भी नहीं सकते यहां पे, यार हम तो भाग भी नहीं। अबे तुझे सुबह नाश्ते में अंडे पराठे मिल गए, तुझे दोपहर घर मिल गया, तू बैंक करप्ट हो या नहीं हो, तू तमीज से खा पी रहा है ना, आराम से रात को खा के सो जाया कर। तू ना देखा कर, ये हमारे बस में नहीं है ये चीजें, हमारे माशियात जाने, गवर्नमेंट जाने। बैंक करप्ट होला हमारे क्या, हम क्यों टेंशन ले भाई। तो तमीज से अगर मोबाइल से जान छुड़ाओगे तो सुकून की जिंदगी गुजरेगी। और जो यंग लड़के उनके तो और फिर वो लड़कियों के मैसेज भी चेक करने होते हैं उन्होंने, और डिप्रेशन। तो आपने अपने आप को इस जदीद जो टेक्नोलॉजी है इसका गुलाम नहीं बनाना, इसको अपने ताबे रखना है आपने। तो टाइम बचाएं, हदीस का ये मफहूम है जो मैंने आपके सामने हदीस पेश की।